wide is driven into an embedded length of 12 meter in cohesive soil. So you have length equal to 12 meter and B equals to 0.4 meter. AB end bearing area would be 0.4 into 0.4, right? क्या होगा 0.16 मीटर स्क्वायर नहीं होगा ना and AS would be equal to 4B into L. Parameter 4B is the parameter, L is the length. तो क्या होगा 4 into 0.4 into 12 इससे जो आता है वो होगा AS. वेरी इजी. अब आते हैं QB in bearing. In bearing we have CUB and 9 into CUB, where CUB is the undressed shear strength at the base of the pile. So 9 into at the base of the pile, what is the uh, look? CU at 12 meter depth. 12 meter depth means at the base of the pile is 85.4 kPa. Here you can find in bearing resistance. Now QS in terms of effective stress parameters. What is the equation? QS is equal to rather average QS is equal to beta into average SV prime. Beta value is given 0.4. But what is the average SV? SV is the vertical effective stress, right? So let's plot the vertical effective stress. This is the vertical effective stress. 20 into 3. At 3 meter you have water table. 20 is the unit weight of soil. 20 into 3 is 60 kPa. After water table you would use effective unit weight. So this is the 9. So you have this effective stress. In order to find average vertical stress, what you would do, you would find this area and divide it by length. You'll find this area and divide it by length. So SV prime would be average SV prime would be equal to area, red area, divided by length of the pile. So if you find this, put this in the average, put this into this equation, average QS beta into average SV prime, you will get QS. Once you find QS, the ultimate load capacity is AB into QB plus AS into QS. This is the ultimate load capacity of the pile. Okay? But it is asked to find allowable P allowable. Okay? So AB over QB divided by factor of safety, ठीक है ना, और ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपको दिया गया है फॉर एंड बेयरिंग रेजिस्टेंस a factor of safety is 3 for the base shear given. So for the base shear 3 and for the skin friction plus
For skin friction, QS into AS, a factor of safety of 2.5 is given. So by dividing this, you will find P allowed. ठीक है, ये भी यहाँ पे सॉल्व है. QB is CUB into NC. This QS is equal to beta into average vertical stress. Average vertical stress is the area. This is the area divided by 12 length of the pile. This is average vertical stress. QS average is beta into average vertical stress 0.4 into 86.9, 34.7 kPa. Ultimate and allowable compressive loads. PU is equal to AB QB plus ASQS. Divide these by a factor of safety, you will get allowable bearing capacity. Do you have any question on this? Is this clear? Shahab Masood? Shahab? Shahab? Yes, sir. Is this clear to you? Yes, sir. Very good. Very good. Thank you, sir. Let's move further. Acha. Now we will discuss what happens when you drive pile in cohesive soils. You have cohesive soils and you drive a pile on in this. So in the case of driven piles, the clay adjacent to the pile is displaced both laterally and vertically. When you drive pile in clays, so the soil would be displaced both in the horizontal direction and in the vertical direction because you are driving the pile. These are driven piles. So what would happen? The soil at the surface would bulge, would heave. ग्राउंड सरफेस पे जो सॉइल है ना वो हीव कर जाएगी, ऊपर की तरफ आ जाएगी. तो ऑलरेडी जो पाइल्स आपने ऑलरेडी इससे पहले इंस्टॉल किए हैं, तो ये जो आप ड्राइविंग करेंगे किसी पाइल की, तो वो जो ऑलरेडी इंस्टॉल पाइल्स हैं उनकी बेरिंग कैपेसिटी को कम कर देगी. क्योंकि जब आप पाइल ड्राइव करेंगे तो वो सॉइल ऊपर की तरफ आएगी, ऊपर की तरफ आएगी तो उसके गिर गिर जो पाइल होंगे जो ऑलरेडी इंस्टॉल हैं वो भी ऊपर की तरफ मूव होंगे और इसकी बेरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी. और क्या होगा जब आप इंस्टॉल करेंगे, पाइल को ड्राइव करेंगे, तो पाइल के इर्द गिर्द जो सॉइल होती है ना वो रिमोल्ड हो जाएगी, उसके जो नेचुरल फैब्रिक्स है ना वो डिस्टर्ब हो जाते हैं. और क्या होगा? और ये होगा कि इसके इर्द गिर्द जो है पाइल के इर्द गिर्द जो सॉइल है उसमें एक्सेस पोर वाटर प्रेशर डेवलप हो जाएगा. और वो एक्सेस पोर वाटर प्रेशर जो है ना बहुत मुद्दत तक नहीं रहेगा, क्योंकि वो जोन जो है जिसमें एक्सेस पोर वाटर प्रेशर डेवलप हो चुका है वो नैरो है, इतना ज़्यादा नहीं है. इसकी वजह से कुछ महीनों में वो डिसिपेट हो जाएगा और पाइल के इर्द गिर्द जो सॉइल है वो ड्रेन फॉर्म में आ जाएगी. और 2-3 महीने लगते हैं कि आप उस पर स्ट्रक्चर लोड अप्लाई करें. तो जब फुल स्ट्रक्चर लोड अप्लाई होगा तो सॉइल जो है ना पाइल के इर्द गिर्द वो ड्रेन फॉर्म में होगी. ठीक है ना? तो आप इफेक्टिव स्ट्रेस एनालिसिस QS के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है, बट यूजुअली मे बी दैट अनड्रेन एनालिसिस आपको कम कैपेसिटी दे बनिस्बत QS के. अगर आप बोर्ड पाइल इस्तेमाल करें तो बोर्ड पाइल में ये किस किस्म के मसले तो नहीं आते, अलबत्ता और मसले आ सकते हैं. मसलन जब आप बोर करें, बोर्ड पाइल बनाएं तो फर्स्ट यू वुड ड्रिल अ बोर होल
और जैसे आप बोर करेंगे और सॉइल को रिमूव करेंगे तो सॉइल में स्ट्रेस रिलीज आ जाएगा, क्योंकि आपने सॉइल रिमूव किया, देयर विल बी स्ट्रेस रिलीज। स्ट्रेस रिलीज के साथ क्या हो जाएगा, सॉइल हो जाएगा, वो सॉइल भी रिमोल्ड हो जाएगी, क्योंकि वो ड्रिलिंग इक्विपमेंट जो है ना, वो जब ड्रिलिंग करेगी तो वो इर्द गिर्द की सॉइल को भी डिस्टर्ब करेगी, रिमोल्ड करेगी, और स्ट्रेस भी रिलीज हो जाएगा। इसके अलावा अगर वाटर टेबल है तो वो वाटर जो है ना वो इस होल की तरफ सीप सीप करना शुरू कर लेगा। और जब आप कंक्रीटिंग करेंगे तो कंक्रीट से भी ये सॉइल जो है ना वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, तो उससे भी ये सॉफ्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस किस्म की इफेक्ट्स आ सकती है। अगर ये होल बड़ी मुद्दत तक आप छोड़ दें तो जो वाटर सीप करेगा वो उसको बड़ा डिस्टर्ब कर लेगा और इसकी स्ट्रेंथ को काफ़ी रिड्यूस करेगा। इसलिए बोर्ड पाइल को जैसे ही आप बोर करें तो जल्द से जल्द उसकी कंक्रीटिंग करें और काम मुकम्मल करें। सर जी जी जी। ये स्ट्रेस रिलीज कैसे होगा सर? ये अगर हम बोर करेंगे तो उससे हमारे पास स्ट्रेस रिलीज का फिनोमेना कैसे होगा सर? अच्छा अच्छा, जी सर। देखें, हाँ, ये सॉइल है, इसमें आपने ये बोर कर दिया है, ये बोर कर दिया है, ठीक है ना। जब आपने ये बोर कर दिया है और ये मिट्टी जो आपने हटा दी है, कौन सी मिट्टी, ये वाली, ये आपने हटा दी है। यहाँ पे अब एयर है, तो यहाँ पे अगर आप कोई सॉइल एलिमेंट ले लें, यहाँ पे अगर कोई सॉइल एलिमेंट ले लें तो देखें यहाँ पे क्या स्ट्रेस होगा। हियर यू गो, ये यहाँ पे क्या स्ट्रेस होगा, जीरो हो जाएगा, कोई स्ट्रेस नहीं क्योंकि होगा। यहाँ पे रेड अब कोई वो नहीं है। समझ आ गई? यस सर, अभी समझ आ गई। चले ये भी मैं सेव कर लेता हूँ, नेक्स्ट क्लास में अगर कोई पूछे तो। सर अच्छा सवाल था ना? हाँ बहुत अच्छा, शाबाश। स्ट्रेस रिलीज डायग्राम कैसे है? सर डायग्राम जबरदस्त है सर, समझ आ चलो। जाती है डायग्राम से। अच्छा, ये ऑनलाइन क्लासेस की वजह से हमने भी पेन ब्रश सीख लिए। यस सर, सही बात है। चलें, अब आते हैं, ये समरी है, इस टेबल में सारी समरी दी गई है, जितने इक्वेशन अभी तक हो चुके हैं, ठीक है ना, क्ले के लिए, सैंड के लिए, तो ये वो इक्वेशन सारी यहाँ पे उसकी समरी दी गई है एक टेबुलर फॉर्म में। तो आप जल्दी यहाँ से पिक करके आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने ये बनाई है आपके लिए, आप देख सकते हैं। उन इक्वेशन को यहाँ पे डाल दिया गया है। देखें वन, ये देखें, ठीक है। अच्छा अच्छा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है, हमारे पास दो किस्म के रेजिस्टेंसेस हैं, एक इन बेरिंग रेजिस्टेंस है और एक आपके पास स्किन रेजिस्टेंस है। तो दोनों के लिए अलग फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूजुअली यूज होता है। उसकी वजह ये है कि इन बेरिंग रेजिस्टेंस और स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस जो है ना, वो एक वक्त में एक ही डिस्प्लेसमेंट पे दोनों पीक पे नहीं पहुंचते, बल्कि पहले स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस अपने पूरे रेजिस्टेंस पे पहुंच जाता है, ठीक है ना। उसके बाद काफ़ी डिस्प्लेसमेंट के बाद इन बेरिंग रेजिस्टेंस जो है ना वो अपने पीक पे पहुंच जाता है। दोनों मुख्तलिफ डिस्प्लेसमेंट पे पहुंचती है,
इसलिए एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी दोनों के लिए इस्तेमाल करना कोई लॉजिकल नहीं है, क्योंकि एंड बेयरिंग रेजिस्टेंस जो है उसके लिए काफ़ी डिस्प्लेसमेंट की ज़रूरत है, इसलिए उसके लिए ज़्यादा फैक्टर ऑफ सेफ्टी इस्तेमाल करते हैं। और स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस चूँकि कम डिस्प्लेसमेंट की जल्दी मोबालाइज हो जाता है, इसलिए उसके लिए स्मॉल फैक्टर ऑफ सेफ्टी इस्तेमाल करता है। यूजुअली एंड बेयरिंग के लिए 3 और स्किन फ्रिक्शन के लिए 2.5 इस्तेमाल होता है, जैसा कि हमने एग्जाम्पल में किया। स्किन फ्रिक्शन, ए नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन, ये क्या होता है? दिस वेरी इंपॉर्टेंट। If a designer does not know skin friction resistance, or he doesn't take it in his design and actually it happens at site, his structure could be endangered, could be in danger. क्या होता है negative skin friction? Look at this situation. Is a pile penetrating 3 types of strata. First is a fill material, which is loose and consolidating under its own weight. फिर आपके पास उसके नीचे है soft clay, which is consolidating under the weight of the fill. Weight of fill जो इस पे आया है उसकी वजह से ये consolidate हो रहा है। और तीसरा है firm और hard bearing layer। ठीक है, तो क्या होगा, ये सॉइल जो है ना वो क्ले पे पाइल के साथ चिपकी हुई है, stick to the pile, and as the fill material is consolidating under its own weight and the soft clay is consolidated under the weight of the fill, it will drag it will drag the pile in the downward direction, only the end bearing resistance and skin resistance in the hard firm stratum, they actually resist the load, they actually resist the PU load. If you write an equilibrium equation, it would be like PU plus QSN is the negative skin friction, N for negative, S for skin friction, into AS is equal to QB into AB plus QS into AS, right? So this would be the equilibrium equation. And as you see, the negative skin friction, when it QSN into AS, when it is brought to the right hand side of the equation, it would become negative. It means PU would be reduced. PU would be reduced. So the negative skin friction actually reduces the ultimate bearing capacity of the load carrying capacity of the pile. QSN is equal to beta into average effective stress, where beta is equal to 0.25. So this is skin friction resistance, negative skin friction resistance. सर ये नेगेटिव वेट की वजह से हो जाती है सर जी जी फ्रिक्शन, ये नेगेटिव वेट सीगा सर ये जो नेगेटिव प्रेशर है सर ये वेट ऑफ फिल की वजह से हो जाती है सर। ये कंसोलिडेशन की वजह से होती है। कंसोलिडेट का मतलब है कि सॉइल नीचे की तरफ मूव हो रहा है, सेटल हो रहा है, ठीक है ना। और जब ये सेटल होगा तो पाइल को भी अपने साथ नीचे की तरफ ले जाएगा। सर तो कंसोलिडेशन तो हमारे पास तकरीबन हर सॉइल में होती है, तो सर ये नेगेटिव जो है स्किन फ्रैक्शन ये हर सॉइल में भी होगा सर? नहीं, देखें ये जो है ना फिल मटेरियल है, लूज फिल मटेरियल है, ये कंसोलिडेट हो रहा है और इसके नीचे ये सॉफ्ट क्ले है, ये कंसोलिडेट। अगर फर्म और हार्ड सॉइल है तो वो कंसोलिडेट नहीं होती, ठीक है ना। ओके सर।
अच्छा जी, पाइल ग्रुप। अब आते हैं, अब तक जो हम डिस्कस कर रहे थे वो सिंगल पाइल था, सिंगल पाइल कैपेसिटी, एंड रेयरली इज अ सिंगल पाइल प्रोवाइडेड, दे आर ऑलवेज इन ग्रुप्स। ठीक है ना, ग्रुप में क्यों होता है? ताकि उसमें बैलेंस रहे, एक्सेंट्रिसिटी और मिसअलाइनमेंट, अगर ये हो तो उसको भी काउंटर कर सके। तो मिनिमम ऑफ 2 और 3 पाइल्स अंडर अ फाउंडेशन एलिमेंट, मिनिमम, और मैक्सिमम तो आप 100 से भी ज्यादा दे सकते हैं अगर जहाँ पे रिक्वायर्ड हो। तो दे आर प्रोवाइडेड इन पाइल ग्रुप। और पाइल ग्रुप कैसे नजर आता है, आ, वो मैं आपको बताऊं। फॉर एग्जांपल, ये एक पाइल ग्रुप है, ठीक है ना। देखें, इसका ये टॉप व्यू है, इसमें 9 पाइल्स हैं, 9 सर्कुलर पाइल्स हैं। ये इसका सेक्शन है 3 बाई 3। ऊपर पाइल कैप है, एक बड़ा स्लैब है कंक्रीट का जिसने इन सबको ज्वाइंट किया हुआ है, इसको कहते हैं पाइल कैप। ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक इसको LG और BG कहते हैं, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द पाइल ग्रुप। ठीक है ना, और देखें आप, और इसको D आप कह दें, डेप्थ ऑफ द पाइल ग्रुप। और इसमें देखें, 2 किस्म के पाइल की सेटअप हो सकती है। एक ये है जिसका पाइल कैप जो है that is above the ground surface, it is not in contact with the ground, and the second one, the pile cap is in contact with the ground. Of course, the second one, the B one, would give you greater capacity because not only the piles but pile cap which is in contact with the ground resists the vertical load. Here in case A, only piles resist the loads, right? Only pile resists the load. But A is the condition where, for example, you are constructing a bridge and there is scouring, and definitely there is, if there is a river, there will be scouring and pile cap will be exposed, right? It will not be in contact with the river bed. So this would be the situation. ठीक है ना, even if it was initially constructed like B, it will end up in case A after some time. ठीक है ना, तो दिस इज पाइल ग्रुप। अब पाइल ग्रुप की कैपेसिटी कैसे मालूम करते हैं, उस पे बात करते हैं। पहले एफिशिएंसी ऑफ द पाइल ग्रुप पे आते हैं कि एफिशिएंसी ऑफ द पाइल ग्रुप क्या है। एफिशिएंसी ऑफ ग्रुप क्या है? देखें, अगर आपके पास एक सिंगल पाइल है, PU सिंगल, ये एक सिंगल पाइल की कैपेसिटी है, ठीक है ना। दिस इज सिंगल पाइल कैपेसिटी। और पाइल ग्रुप में आपके पास n number of piles in a pile group। आपके पास पाइल ग्रुप में n नंबर ऑफ पाइल्स हैं, तो PU of the whole group will not be equal to n times PU। ये इसके बराबर नहीं होता, will not necessarily the general। ठीक है, rather PU group is generally less than, और इसकी रेशियो को एफिशिएंसी ऑफ पाइल ग्रुप कहते हैं।
ठीक है ना, इसकी पी यू, ठीक है ना। सर जी इसके पीछे रीजन क्या है सर? अगर पी क्या? यू हमारे पास पी यू लेस है, एंड जर भी पी यू सिंगल से पी यू ग्रुप, जी जी। तो रीजन क्या है सर इसके पीछे? अच्छा, रीजन ये है कि अगर फाइल आपस में बड़ी नजदीक नजदीक आ रहे हैं, ठीक है यस ना, सर। तो वो आपस में इंटरेक्ट करेंगे, उसके शेयर जोन हैं, जोन्स, वो आपस में इंटरेक्ट करेंगी। फॉर एग्जांपल यू कम हियर, ये देखें, ये सिंगल फाइल है, और जब दो फाइल नजदीक आप डाल दें नजदीक, तो देखें इसके प्रेशर बल आपस में इंटरेक्ट करेंगी। देखें ये यस सर। टॉप व्यू है, ये चार फाइल्स हैं, तो देखें ये जोन्स ऑफ देयर इंटरेक्शंस हैं, ठीक है ना। तो इसकी वजह से इसकी कैपेसिटी कम होगी। ओके सर, थैंक यू सर। मगर ये जरूरी नहीं है, इसमें केसेस है, अभी मैं आपको बयान करता हूँ, अभी मैं आपको बयान करता हूँ। अच्छा, बल्कि मैंने किया भी है। नहीं, यहाँ पे नहीं है, वो दूसरे लैपटॉप में है। आ, आपके पास ड्रिवन फाइल्स हैं और बोर्ड फाइल्स हैं। ड्रिवन फाइल में आपके पास फिर मीडियम डेंस सैंड है, और आपके पास, ठीक है, ड्रिवन फाइल में आपके पास इसमें क्या होता है, when you drive pipe in loose or medium dense sand, the sand densifies, सैंड जो है ना वो डेंसिफाई हो जाता है, ठीक है ना। मसलन आप एक फाइल ड्राइव करते हैं, उसके साथ दूसरा ड्राइव करते हैं, तो वो सैंड डेंसिफाई हो जाता है, और दूसरा फाइल ड्राइव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तीसरा फाइल, चौथा फाइल। तो dense, so shear strength of soil because of densification increases, so efficiency of pile group would be would be more, it would be between 1.3 to 2. However, for design purpose, efficiency is taken equal to 1. तो देखें यहाँ पे एफिशिएंसी कम नहीं हुई, बल्कि एफिशिएंसी एक्चुअली ज्यादा है। हाँ, डिजाइन पर्पस के लिए आप 1 लें। What happens when you have dense sand? In dense sand, sand between piles actually become loose. जब आप डेंस सैंड में पाइल को ड्राइव करें तो आपको पता है उसमें
डायलेशन होती है, डायलेशन टेक्स प्लेस, जिसकी वजह से शेयर स्ट्रेंथ कम हो जाती है। दूसरी बात यह है कि शेयर जोन्स ओवरलैप, जो मैंने अभी आपको बताया, इसकी वजह से एफिशिएंसी जो है ना वो लेस देन 1 होती है। ओ, ओ ये क्या हुआ, कहाँ चला गया? ओ माय गॉड, ओ चले फिर लिख लेता हूँ। कंट्रोल Z दबा दे सर। सर शमरोज कह रहे हैं कि कंट्रोल जेड दबा दे वापस आ जाएगा। सर पता नहीं सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। बोर्ड फाइल में क्या होता है अरे के बाद अभी हो गया। जी? ये तो था सैंड में, अब आते हैं क्ले पे। अब आते हैं क्ले पे। इस डायग्राम को देखें, फिर मैं आपको क्ले में एक्सप्लेन करता हूँ। ये एक पाई ग्रुप है और इसकी डायमेंशन LGBG है और इसकी डेप्थ D है, और इसको मैंने एज अ ब्लॉक यहाँ पे शो किया है BGLG×D। ये पूरा एक पाई ग्रुप का ब्लॉक है और इसको मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा, इसलिए मैंने आपको ये इसका बैकग्राउंड दिया। हियर यू गो। एक मिनट मुझे दें, अभी थोड़ा 1-2 मिनट मुझे दें।
अच्छा जी, हेलो, फाइल ग्रुप इन क्लेस। उसमें दो किस्म के फेलियर मोड हो सकती हैं। एक को कहते हैं सिंगल फाइल फेलियर मोड, वेयर PU ग्रुप फाइल फाउंडेशन वो फाउंडेशन होती है जो कि जिसका फाइल कैप ग्राउंड से इन कांटेक्ट होगा। तो PU ग्रुप इज इक्वल टू N इंटू PU सिंगल फॉर फ्री स्टैंडिंग फाइल ग्रुप फाइल कैप नॉट कॉन्टेक्टेड। ठीक है ना, ये आपके पास ये सिंगल, इसको कहते हैं सिंगल फाइल फेलियर मोड। दूसरा आपके पास है ब्लॉक फेलियर मोड। ब्लॉक फेलियर मोड में क्या होता है कि पूरा का पूरा फाइल ग्रुप एज अ बिग पेयर जो है ना वो फेल हो जाता है, जिस तरह के इस डायग्राम में दिखाया गया है। होल होल फाइल ग्रुप fails as a unit, as a large pair of limbs of dimensions LG into BG into D। ये इस लार्ज पेयर के डायमेंशन है। तो इसका PU ब्लॉक फेलियर, PF में लिख लेता हूँ ब्लॉक फेलियर के लिए, किसके बराबर होगा? AB इंटू QB प्लस AS इंटू QS। AB किसके बराबर होगा? कोई बताए मुझे। ऑफ दिस फाइल ग्रुप AB किसके बराबर होगा? एंड बेरिंग एरिया किसके बराबर होगा? BG मल्टीप्लाई बाय LG। से कहते जे लड़ से लस बजे भी आ राशन BG मल्टीप्लाई बाय LG के बराबर करुए हुआ को तलाड़ से भी आ राशन जी। BG मल्टीप्लाई बाय LG के बराबर होगा सर AB। हाँ, BG इंटू LG, ये एंड बेरिंग एरिया है नीचे जो कि रेजिस्ट करता है। और AS किसके बराबर होगा? AS पेरीमीटर एरिया। तो पेरीमीटर, इसके पेरीमीटर क्या है? 2 इंटू BG प्लस LG इंटू D। D इसका डेप्थ हो गया, ये पूरा साइड्स का सरफेस एरिया हो गया, ये S हो गया। QB किसके बराबर होगा? QB क्ले के लिए QB क्या होता है? CU into NC, CUB into NC। Here NC
का कोई इक्वेशन है वो मैं लिखवाता हूँ, ठीक है ना, वो यहाँ पे मैं पेश करूंगा, सी यू बी इंटू एन सी, और क्यू एस किसके बराबर होगा? अल्फा मल्टीप्लाई बाई सी यू। बराबर होता है अल्फा इंटू सी यू, एवरेज सी यू के बराबर होता है, मगर इसमें अल्फा 1 के बराबर होता है क्योंकि ये यहाँ पे एयर गिर सॉइल है, कोई एडहेशन फैक्टर नहीं है, एडहेशन फैक्टर वुड बी 1, तो ये आपके पास डायरेक्टली एवरेज सी यू के बराबर हो गया, ठीक है ना। तो आपके पास जो इक्वेशन आ जाता है अल्टीमेट सी यू ब्लॉक फेलियर का, वो आ जाता है ए बी हो गया बी जी इंटू एल जी इंटू सी यू बी एन सी प्लस, फिर क्या होगा, एवरेज सी यू इंटू 2 इंटू बी जी प्लस एल जी, ये हो। ये आपके पास, अब आते हैं एन सी का इक्वेशन मैं आपको लिखवाता हूं। एन सी कहाँ है? एन सी ये है। ये है एन सी। अच्छा जी, अब इसमें आपके पास डिजाइन वैल्यू कौन सी होगी? मिनिमम डिजाइन वैल्यू ऑफ पी is minimum of single file failure mode and block ये आपके पास डिजाइन वैल्यू। इन दोनों फेलियर मोड में जो मिनिमम आपको देगा, दैट इज योर डिजाइन वैल्यू। समझ आ गई? लेट्स हैव एन एग्जांपल ऑन दिस। और ये एग्जांपल सॉल्व है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व है, तो आप इसको खुद करेंगे, ठीक है ना। ये दिया गया है एग्जाम्पल, ठीक है ना। इसमें आपको सब कुछ दिया गया है, नंबर ऑफ पाइज एन, ये सब कुछ दिया गया है। तो आपको पहले सिंगल फाइल फेलियर मोड निकालना होगा, फिर फाइल ग्रुप निकालना होगा, ब्लॉक फेलियर निकालना होगा, फिर आपको इन दोनों में से मिनिमम लेना होगा। ये सॉल्व है,
ठीक है ना, आप इसको देखें और इसको सॉल्व करें, घर में इसको सॉल्व करें, ठीक है ना, इसको घर में पे सॉल्व करें। If you have any question in the block failure in this, you can ask, so that we should start Viva. कोई क्वेश्चन है? सर जी, ये सिंगल पाई के लिए और ब्लॉक फेलियर मोड दोनों के लिए एक ही हमारे पास डिज़ाइन वैल्यू होगी सर, या इन दोनों के लिए अलग अलग? फिर दोबारा बताएं। सर ब्लॉक फेलियर मोड और सिंगल पाइल फेलियर मोड के लिए हमारे पास एक ही डिज़ाइन वैल्यू होगी या हम अलग अलग देंगे? देखिए, आपके पास एक फाइल ग्रुप है, उसमें Yes, दो sir. किस्म के फेलियर पॉसिबल हैं। एक सिंगल फाइल फेलियर मोड पॉसिबल है, दूसरा ब्लॉक फेलियर मोड पॉसिबल है। आप दोनों को इवेलुएट करें, ठीक है, दोनों की वैल्यू निकालें, जो मिनिमम होगी वो गवर्न करेगी, वही आपकी डिजाइन वैल्यू हो जाएगी। ओके सर, ठीक है ना। ओके। इस एग्जांपल में देखें, अब इस एग्जांपल को मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं। इसमें आपके पास देखें नंबर ऑफ फाइल्स कितनी है, 9, और पीयू सिंगल कितना है, 819, ठीक है। तो आपके पास सिंगल फाइल फेलियर क्या हो जाएगा, सिंगल फाइल फेलियर मोड अगर गवर्न करती है तो उसकी क्या वैल्यू हो जाएगी, 9 इंटू 819, 7371, ठीक है ना। क्योंकि ये फाइल फाउंडेशन है इसलिए इसको 2/3 से डिवाइड ना करें, ठीक है ना, इसको सिर्फ 9 इंटू पी सिंगल होगा 819 73। अब आप ब्लॉक फेलियर मोड निकालें, तो ब्लॉक फेलियर मोड आपके पास आ रहा है 10392 किलो न्यूटन। तो देखें, ब्लॉक फेलियर मोड से आपके पास आ गया 10392 और सिंगल फाइल से आ गया 7371। तो इन दोनों में जो कम होगा, ठीक है ना, मिनिमम ऑफ एन बी, वो होगा आप ये। अब आपको समझ आ गई? जी सर, आ गई समझ। चलें, आप लीव कर जाएं, जिनका वाइवा है सिर्फ वहीं रह जाए।